इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कंसिडर द फ्लो ऑफ लिक्विड विद वेलोसिटी v थ्रू अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ds in a direction normal to the surface. The rate of flow of liquid is given by the volume crossing the area per unit time vds and represents the flux of liquid flowing across the plane. ठीक है, तो जैसे कि एक लिक्विड है ना, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है ये जा रहा है लेट अस से एक पाइप में, ऐसे क्लियर है क्या, ऐसे जा रहा है। नाउ इट इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, यस और नो, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय द वॉल्यूम crossing the area per unit time vds and represents the flux of liquid flowing across the plane. तो इसका अगर velocity v है, ठीक है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी v है तो एक सेकेंड में कितना ये ट्रेवल करेगा, एक सेकेंड में ट्रेवल करेगा v इंटू टी, यानी कि v इंटू 1 मीटर्स, क्लियर है क्या। तो मानिए कि ये एक सेकेंड में इतना ट्रेवल किया, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम ट्रेवल किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू वी, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ ट्रेवल ये हो जाएगा AV पर सेकेंड, क्लियर है ये सर। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। If the normal to the surface is not parallel to the direction of flow, that is to V, but makes an angle theta with it, the projected area in a plane perpendicular to V is delta into ds cos theta. Therefore, the flux going out of surface ds is V dot n ds. For the case of the electric field, we define an analogous quantity called as electric flux. We should, however, note that there is no flow of physically observable quantity, unlike the case of liquid flow. तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dA विच इज द एरिया, क्लियर है क्या। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड dA का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, क्लियर है यस और नो, कोई दिक्कत। Therefore, the flux going out of the surface is V dot n ds. For the case of the electric field, we find an analogous quantity called electric field. We should, however, note that there is no flow of a physically observable. ठीक है? In the picture of the electric field line described above, we saw that a number of field lines crossing a unit area placed normal to the field at a point is measure of the strength of the electric field at that point. That means that if we place a small planar element of area delta s normal to E at a point, the number of field lines crossing it is proportional to E delta s. ठीक है, तो जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्लियर है क्या, और ये है एरिया डेल्टा एस, ठीक है। तो यहां पे जब ये देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है, सो द एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसेस थ्रू इट, क्लियर है क्या। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर क्या होगा, जब ये एक एंगल पे है ना, जैसे कि यहां पे देखिए ये एक एंगल पे है, ठीक है ना, ये एरिया हो गया, ये एक एंगल पे है, सो देन वी टेल दैट इट इज E इंटू dA cos थीटा, ठीक है।
normal d, okay, the number of field line crossing is proportional. Now suppose we tilt the area element by angle theta, clearly the number of field lines crossing the area element will be smaller. The projection of the area element normal to E is delta S cos theta. Thus the number of field lines crossing delta S is proportional to E delta S cos theta, where theta is equal to 90 degree. Field lines will be parallel to delta S and will not cross it at all. The orientation of the area element and not merely its magnitude is important in many contexts. For example, in a stream, the amount of water flowing through a ring will naturally depend on how you hold the ring. If you hold it normal to the flow, maximum water will flow through that. Then if you hold it with some other orientation, this shows an area element should be treated as vector. ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है एरिया. अब ये एरिया का जो ओरिएंटेशन है इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं. द ओरिएंटेशन इज चेंज्ड. तो कैसे चेंज हो रहा है? पहले ऐसा था, अब देखिए इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है एंड नाउ दिस इज एट सम एंगल. क्लियर है क्या? तो देखिए ध्यान से, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा था सारा इसके थ्रू पास कर रहा है. क्लियर है क्या? यहां पे क्योंकि ऐसे कर दिया है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके थ्रू पास नहीं कर रहा है. और यहां पे क्योंकि एक एंगल दे दिया है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पास कर रहा है लेकिन सारे के बीच में अलग अलग एंगल बन रहा है. मतलब कि जो है 90 डिग्री नहीं बन रहा है, परपेंडिकुलर नहीं. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है. तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर जो है क्या कहते हैं एरिया है, इसीलिए यहां पे फ्लक्स दूसरा है, यहां पे दूसरा है और यहां पे एक एंगल है, इसीलिए थीटा है. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. ठीक है. अब इसको हम लोग जो है थोड़ा और अच्छे से समझते हैं एरिया वेक्टर के थ्रू. The orientation of area element and not merely in magnitude is important meaning. ठीक है, ठीक है. Thus an area element should be treated as vector. तो एरिया जो है वो भी वेक्टर की तरह ट्रीट होता है. तो ये देखिए ध्यान से, एरिया जो है दो प्रकार का होता है. पहला है ओपन सरफेस, दूसरा है क्लोज सरफेस. तो ओपन सरफेस क्या है? ओपन सरफेस मींस कि जो है कोई भी वॉल्यूम ये इनक्लोज नहीं कर रहा है. इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो है वॉल्यूम इनक्लोज्ड है ना, यस और नो? इसके अंदर वॉल्यूम इज नॉट इनक्लोज्ड, यस और नो? ठीक है. तो जिसमें वॉल्यूम इनक्लोज नहीं है उसमें एरिया वेक्टर जो है बाहर भी निकला हुआ रह सकता है और अंदर भी रह सकता है. लेकिन जिसमें वॉल्यूम इनक्लोज्ड है उसमें एरिया वेक्टर बाहर ही रहेगा. क्लियर है क्या? See, open surface, any one of the two normals can be taken as the outward normal. Closed surface, there is only one possible outward normal. ठीक है, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है बाहर की तरफ.
तो it has magnitude and also how to specify the direction of a planar area. So clearly the normal to the plane specifies the orientation of the plane. Thus the direction of a planar area vector is along its normal. ये देखिए NCERT भी बोल रहा है ना, ये है एरिया, ये ऊपर की हो सकता है और एक्चुअली अंदर की तरफ भी हो सकता है, लेकिन इसमें केवल बाहर की तरफ ही होगा. How to associate vector to the area of a curved surface? We imagine dividing the surface into a large number of very small area elements. Each small area element may be treated as a planar and a vector associated with it as explained before. Notice one ambiguity here. The direction of an area element is along its normal, but a normal can point in two directions. Which element do we choose as the direction of the vector associated with the area element? The problem is resolved by some convention appropriate to the given context. For the case of a closed surface, जब closed है, the convention is very simple. The vector associated with the every area element of a closed surface is taken to be in the direction of the outward normal. केवल outward normal ही रहेगा. Clear है? This is the convention used in figure 1.16. Thus the area element vector delta s at a point on a closed surface equals delta s, where delta is the magnitude of the area element and n is unit vector in the direction of outward normal at the point. We now come to the definition of electric flux. Electric flux through an area is defined as E delta S cos theta, which as seen before is proportional to the number of field lines cutting the area element. The angle theta here is the angle between E and S. For a closed surface with the convention stated already, theta is the angle between E and outward normal to the area element. Notice we could look at the equation E delta S cos theta in two ways. ठीक है, तो बेसिकली E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा ये हो जाता है फ्लक्स. क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर, ये क्लोज सरफेस है, तो इसीलिए हर जगह जो है क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल है. क्लियर है क्या, यस और नो? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे हर जगह आउटवर्ड नॉर्मल. ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा एग्जांपल्स कर लेते हैं. ध्यान से देंगे, एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का साइड है 2 मीटर, तो इसका 2 मीटर हो गया, इधर भी हो गया 2 मीटर. क्लियर है क्या? तो इसका एरिया क्या हो गया, 4 मीटर स्क्वायर हो गया. यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ऐसे निकल रहा है. क्लियर है क्या? ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, तो यहां पे हम लोग अगर निकालें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट ए. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2 न्यूटन पर कूलम डॉट ए, एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर इनटू कॉस. अब देखिए ध्यान से, ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर रहता है एरिया वेक्टर, जो कि हम लोग यहां पे भी देख रहे हैं परपेंडिकुलर है. ठीक है, एरिया परपेंडिकुलर रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है. तो देयरफॉर क्योंकि दोनों पैरेलल है,
तो दोनों में थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया, सो इसीलिए cos 0 डिग्री आएगा यहाँ पर। cos 0 क्या होता है 1, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है क्या ये सॉल्व? लिख लीजिए इसको। दूसरा एग्जांपल, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया ऐसा है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर ऐसा हो गया। ये एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है E डॉट ए, यस और नो? E डॉट ए मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया 10 न्यूटन पर कूलम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया 4 मीटर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। अब देखिए इसके और इसके बीच में कितना है एंगल, 90 डिग्री है, यस और नो? तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो इसीलिए ये हो गया 0, यस और नो? लिख लीजिए। ठीक है, ये है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, एरिया है 4 मीटर स्क्वायर और इन दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, फील्ड है ऐसा, ठीक है, अब ये है 30 डिग्री, यस और नो? एरिया, ठीक है ना, एरिया का परपेंडिकुलर होगा ऐसा, यस और नो? एरिया के इसके परपेंडिकुलर रहेगा ना एरिया वेक्टर, यस और नो? तो ये कितना है 4 मीटर स्क्वायर है और ये है 10 न्यूटन पर कूलम और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया है 60 डिग्री, यस और नो? क्योंकि हम लोग को भैया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, एरिया के बीच में नहीं। एरिया और एरिया वेक्टर अलग अलग चीज होता है। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। बाजी इसमें so the component of E along the normal to the area time, ठीक है। The basic definition of electric flux given in equation 1.11 can be used in principle to calculate the total flux through any given surface. All you have to do is to divide this surface into small area elements, calculate the flux at each element and add them up. Thus the total flux through the surface area is E into dot delta S. The approximate sign is put because the electric field E is taken to be constant over the small area element. This is mathematically exact only when you take the limit delta S tends to 0 and the sum is written as an integral. Clear है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है।